I know the people of America are deeply interested in India. I send you my cordial greetings on behalf of the Muslim India, and I feel we have your good wishes. As you know, of the many races, creeds and religions that inhabit the vast subcontinent of India, there are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan, which I am confident will settle down as friends and neighbors like Canada and United States and other sovereign states both in North and South America. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. राष्ट्रगान बच्चों को सिखाने पर पीटा जाएगा। पश्चिम बंगाल के एक मदरसे में वहां के टीचर काजी मासूम अख्तर को जिस तरह से देशभक्ति सिखाने की कीमत चुकानी पड़ी, उसके बाद यह सवाल उठा कि क्या वाकई राष्ट्रगान इस्लाम विरोधी है? क्या राष्ट्रगान गाना इस्लाम का अपमान करना है? और क्या राष्ट्रगान को गाने वाले काफिर हैं? वो इलाका का मौलाना मौलवी जो लोगों के साथ बातचीत किया करके बोला जो ये जो टीचर है ये तो इस्लाम का खिलाफ है। कैसे इस्लाम के खिलाफ है? वो जो नेशनल एंथम जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। कुछ आइडिया का वहाँ का कुछ आइडिया आदमी का आइडिया है जो नेशनल एंथम इस्लाम के लिए एंटी इस्लाम है। राष्ट्रगान गाने वाले काफिर क्यों? मदरसे में राष्ट्रगान पर पिटाई क्यों? मदरसे में राष्ट्रगान भला इस्लाम का अपमान कैसे हो सकता है? ये सवाल सामने उठा है कोलकाता के मदरसे में पढ़ाने वाले अख्तार के साथ हुए सलूक से। अब एक स्थानीय मौलवी ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, ये कहते हुए कि राष्ट्रगान एक हिंदूवादी गीत है। अख्तर का यह आरोप भी है कि मदरसे में पढ़ाने के दौरान उन्हें हर हफ्ते दाढ़ी की फोटो भी खिंचाने को कहा जाता था और उन पर पैंट शर्ट्स की बजाय कुर्ते पैजामे में मदरसे में आने का दबाव बनाया जाता था। स्थानीय पुलिस ने उन्हें मदरसे में जाने से मना किया है, ये कहते हुए कि तनाव को देखते हुए पुलिस उन्हें सुरक्षा दे पाने की हालत में नहीं है।
Why are Muslims not allowed to say Vande Mataram? There are 12 lines which are against the Quran and the Sahih Hadith. Thrice it says that I bow down to my motherland, which is prohibited. In Islam, we only bow to our Creator Allah subhanahu wa ta'ala. We are not ready to worship the country, because we worship only Allah subhanahu wa ta'ala. But will never secure the willing approval and sanction of the 100 millions of Muslims unless the gravity of this aspect of the problem is realized and tackled frankly and boldly by the British government. Chaos is inevitable, which must have serious repercussions and endanger the world peace. Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. सवाल यह है कि खुलेआम देश के कानून को न मानने की बात कहने वाले मौलाना बरकती की गिरफ्तारी होगी क्या? देश के प्रधानमंत्री को धमकी देने वाले मौलाना बरकती सलाखों के पीछे जाएंगे क्या? जिहाद छेड़ने का ऐलान करने वाले बरकती पर कानूनी कार्रवाई क्या होगी? अगर हिंदू राष्ट्र होने के माने कि अगर इस नमाज़ें बंद हुई, अजान बंद हुई, कुरान बंद हुआ, शरीयत पर ख़त्म किया गया, देन जिहाद विल बी स्टार्ट. तो क्या हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि नमाज को बंद किया जाएगा? बिकॉज उसकी वजह है ऑन अकाउंट कि अगर आप हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएंगे, पहला सवाल तो ये, क्यों नहीं ये मुस्लिम राष्ट्र बने? क्यों नहीं 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, हमको पाकिस्तान दिया जाए? इफ़ हमें पाकिस्तान दिया जाए, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे. नहीं, ये इसको अगर आप वाज़ेह करते हैं कि तब क्या होगा? जिहाद विल बी कॉल्ड इफ इंडिया बिकम्स हिंदू नेशन. ये स्टेटमेंट क्या है जरा से? वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हिंदू नेशन के माने ये होता है कि अगर आपने इसको मुकम्मल बना दिया हिंदू राष्ट्र और आपने कहा अब यहाँ कुछ नहीं चलेगा, जैसे गाय का गोश्त नहीं चल रही है, अब यहाँ नमाज नहीं चलेगी, अब यहाँ अजान आप उतारिए, मैक उतारिए, आप यहाँ कुरान को ख़त्म कीजिए, तो फिर और क्या करेंगे? आपको तो छोड़ेंगे नहीं हम, आप हमको नहीं छोड़िएगा और हम मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे. जिहाद में तो खलास कर दिया जाएगा, कोई कहानी नहीं है. वो तो आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, और जिहाद तो हम लोग कर ही रहे हैं. हमारा जिहाद तो 100 साल से चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है. यहाँ किसी की लाल बत्ती बंद नहीं हुई, और लाल बत्ती काहे बंद होगी? ये तो सेंटर का रूल है, सेंटर का रूल, सेंटर का रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे. ऐसा करें, ये बेकार की बात है और हमको इसका जवाब भी नहीं देना है. अभी प्लेन की लाल बत्ती जल रही है, बंद कर दी जाए. तो आप क्या इस रूल से बाहर? अच्छा, एक बात सुनिए, हम एकदम अपने आप को बाहर समझते हैं. हम हिंदुस्तान के गलत कानून को नहीं मानेंगे. और तमाम वो लोग जिनके हाथों में सकीन है, कसम उसे
ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए, हम यहीं पर रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिए, यहीं पर मरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। और अगर आप यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर किसी चीज़ को इम्पोज करेंगे तो ये उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को ख़त्म करके रख देगा। इसलिए कि इसको अगर आप सिर्फ मुसलमानों की नज़र से देख रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी प्लुरलिज्म में मुसलमान भी है। और इंडिया से उर्दू जानते हैं, समझते हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या इस्लामी रियासत में हमें अपने मजहब की तबलीग की और अपनी इबादतगाहों की तामीर की इजाजत होती है? अगर होती है तो फिर सऊदी अरेबिया में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में चर्च बनाने की परमिशन क्यों नहीं मिलती, जबकि आप मुसलमान लंदन और पेरिस में अपनी मस्जिदें बनाते हैं? चंद इस्लामिक मुल्कों में, मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया एटसेट्रा में, propagation of any other religion is prohibited. Even construction of any place of worship is also prohibited. इसका मैं सिंपल सवाल पूछता हूं ने कि मैं गैर मुसलमान से ये पूछता हूं, अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अगर आप मैथ्स टीचर चुनना चाहते हैं और 3 टीचर आते हैं, एक टीचर से आप सवाल पूछे 2 जमा 2 कितना, तो पहला टीचर कहता है कि 2 जमा 2 3, दूसरा टीचर कहता है 2 जमा 2 4, तीसरा टीचर कहता है 2 जमा 2 6। तो मैं ये उनसे पूछता हूं, वो टीचर जो कहता है 2 जमा 2 3 या 2 जमा 2 6, क्या आप उसको स्कूल में रखेंगे? तो वो कहते हैं नहीं। मतलब क्यों? आप उसको पढ़ाना देंगे? बोलते नहीं पढ़ाना देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसे मैथमेटिक्स का सही इल्म नहीं है। इसी तरीके से जहां दीन का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान जानते हैं कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 की आयत है कि सिर्फ एक ही सही दीन है, वो है इस्लाम।
और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में क्या इस्लाम के अलावा कोई भी दिगर मज़हब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं करेंगे। तो दीन के मामले में हम जानते हैं इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का प्रोपगेशन अलाउ नहीं करते। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि हम चर्च बनाने देंगे या टेम्पल बनाने देंगे, जब दीन ही गलत है और चर्च में ईसा अलैहिस्सलाम को पूजना गलत है, बुत परस्ती गलत है, इसीलिए हम गलत चीज हमारे मुल्क में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ सऊदी अरेबिया और चंद ममालिक है, सब मुस्लिम कंट्रीज को नहीं मानते। मेरा नाम सोहन है और हम यहाँ पर 70 साल से भी रह रहे हैं, पहले के रह रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है। और ये जो बिल्डर माफिया है, ये बिल्डर माफिया आके यहाँ पे हमारे मंदिर को इन्होंने तोड़ा और यहाँ तक के बिल्डर के जितने गुंडे आए, जेवरात, पेटियाँ, लूट मार, हमारा सामान फेंक दिया सब। और जितना भी यानी मेरा नाम मुकेश है और मैं डोली खाता कंपाउंड नंबर 40 का रिहायशी हूँ। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हम भी आखिर पाकिस्तानी हैं, क्या हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा? क्या हमारे मंदिर को यूँ मस्पार किया जाएगा, हमें रोडों पे फेंक दिया जाएगा? क्या लोग आएंगे हमारे घरों को यूँ ही लूटेंगे? क्या कोई इसका सवाल हमें देगा? क्या हमारे लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, हमारी माँ बहनों के साथ हमें दरबदर कर दिया गया है, हमारी मूर्तियाँ थानों में उठा के रख दी जाती है, हमें रोड पर फेंक दिया जाता है। क्या हम इसी के लिए रह गए? क्या हमारे लिए कोई सुनवाई है इस मुल्क के लिए, या हमें यहाँ से फेंक दिया जाएगा, या हम अपने आप को मार लें या कत्ल कर लें, अपनी बीवी बच्चों को जला दें? ये सब हमारे मंदिर के, हमारे जायदाद इंसान सब कुछ बना सकता है लेकिन अपना मंदिर कभी कोई नहीं बना सकता। लेकिन एक मंदिर इबादत गाह है जिसे हमारा तोड़ दिया गया है और ना ही कोई गवर्नमेंट इसके लिए सपोर्ट कर रही है हमें, ना ही मीडिया आके इस बात को, सच्चाई को सामने देता है कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम सिर्फ सबसे गुजारिश करते हैं कि आके देखो तो सही कि हम भी हिंदू है लेकिन हम इस मुल्क की जान है। अगर हम काम करते हैं, 50 साल पाकिस्तान बनने से पहले से हम यहाँ रह रहे हैं, इसलिए हम बेजार हमारे मंदिर को बनाया जाए और हमारे मूर्तियाँ जो थानों में पड़ी है उनको लाया जाए और बिल्डर माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने देखा अभी जो दो केसेस आपके सामने चल रहे हैं आजकल मीडिया के अंदर, एक वो लड़की का जिसको किडनैप कर लिया गया सिंध के अंदर, हिंदू लड़की, उसको किडनैप करके फोर्स कन्वर्जन करके और किडनैप कर लिया गया और उसके माँ बाप जो है वो बेचारे रो रहे हैं, खड़े हर जगह पे दरवाजे खड़कर आ रहे हैं कि हमारी कोई इंसाफ हो। और ये पता नहीं चल रहा कि वो लड़की जो है उसको कैसे किडनैप किया और कैसे कन्वर्जन हुई, फिर जबरदस्ती शादी हुई या नहीं हुई। दरअसल इस किस्म के जो केसेस होते हैं ये 90% लड़की को उठा लिया जाता है, अच्छा, उसको कानून के तहत उसको जल्दी से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं मुसलमान हूँ करवा के, फिर कलमा पढ़वा के और उसके बाद जिनसी ज्यादती की जाती है।
वो उसको ये कहा जाता है कि तुमसे शादी हो गई है, तुम मुसलमान बन गई हो, शादी हो गई है, और उसके बाद ताकि इनको फिर हाथ ना कोई लगा सके, ये कहा जाए कि ये तो खुद आई है और ये कन्वर्ट हो गई है, अब मेरी बीवी है। इससे ज्यादा और वो अदालतें और पुलिस वो बड़े सिंपैथेटिक होते हैं कि जी किसी एक देरिये को या एक इनफिडल को आपने मुसलमान बना दिया, इससे ज्यादा क्या आपको जन्नत नसीब होगी, क्या ये एक माहौल बनाया हुआ है। मगर एक्चुअली इसके पीछे जो है वो बिल्कुल एक ज्यादती है उसके पीछे, इसका कोई मजहब के साथ ताल्लुक नहीं है, मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये आज तक किसी ने नहीं आपको बताया, मगर जो 90% केसेस हैं जो रिपोर्ट से आए होती है, ऐसी लड़कियां अगर वो अपने माँ बाप के पास ना जाएं या ना वो माँ बाप वापस ले सके उन्हें, तो वो 2-3-4 महीने के बाद वो जो शख्स जिसने इनके साथ शादी की हुई होती है, ये लड़कियां गायब हो जाती हैं, ये उनके पास भी नहीं रहती। और अगर उनसे पूछा जाए कि ये लड़की आपने शादी की थी, कन्वर्ट किया था, वो कहाँ गई, तो आगे से जवाब नहीं मिलता। 90% केसेस में ये लड़कियां जो हैं ये गायब हो जाती हैं या मार दी जाती हैं या इनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है और फिर वो छुपाती फिरती हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो बेइज्जती है या इस किस्म की बात, और खानदान भी उसको छुपा देता है। में अगर कायदे-आज़म के फरमुदात को, तकारीर को पढ़ा जाए तो उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, बार बार बात की है अक़लियतों के हुकूक की। 11 अक्टूबर 1947 की तकरीर से एक लाइन मैंने निकाली और वो भी उस वक्त की वो जिक्र कर रहे हैं जिस वक्त अक़लियतों ने पाकिस्तान से जाकर भारत में रिहाइश अख्तियार करने को तरजीह दी। दैट वी वुड ट्रीट द माइनॉरिटीज फेयरली एंड दैट नथिंग इज फार्दर फ्रॉम आवर थॉट्स देन टू ड्राइव देम अवे। ये कहते हुए उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया कि भारत जाने वाली अक़लियतों ने पाकिस्तान को मौका नहीं दिया। आज का पाकिस्तान, अगर कायदे आजम होते कोट राधाकृष्णन, बादामी बाग, गोजरा सानिया की बात करें तो कायदे आजम क्या सोचते? वो तो उनके बारे में कहते जिन्होंने हमें परखा नहीं या हम पे एतबार नहीं किया और चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ ठहर गए उनको क्या हक मिला है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोग चले गए वो अक्लमंद थे कि चले गए। अगर आज के हालात देखें तो कितने लोग पाकिस्तान से चले गए हैं जिनका ताल्लुक मजहबी अक़लियत से है। ये कहना कि हम अक़लियतों की हिफाजत करेंगे, ये एक महज खूबसूरत फ़िक्रा है। जमहूरियत में तो अक़लियत होती ही नहीं, उसका तसव्वुर ही नहीं है। लफ्ज़ अक़लियत इस्तेमाल करना ऐसे लोगों के लिए जिनका मज़हब मेजॉरिटी के मज़हब से मुख्तलिफ है, वो जमहूरी उसूलों के ख़िलाफ़ है। हर पाकिस्तानी जो है कायदे-आज़म के कहने के मुताबिक उसके इक्वल राइट्स हैं। 11 अगस्त की तकरीर में उन्होंने बहुत दफ़ा ये कहा कि ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान विल हैव इक्वल राइट्स। हमने वो इक्वल राइट्स उन्हें नहीं दिए। अक़लियत कह के जिसका हमने शुरू किया इजहार ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जिसमें ये कहा गया कि जी अक़लियतों को हम पूरी हिफाजत करेंगे, उनको हुकूक देंगे। सवाल ये है कि वो अगर पाकिस्तान के शहरी हैं तो आप कौन हैं ये कहने वाले कि हम उनको हुकूक देंगे और उनकी हिफाजत करेंगे? I was working in a farm with a Muslim family. We too were living there. He invited me that you all family should embrace Islam and come to Islam. When we totally refused and we will not come under their pressure, then they abused my daughter. I was working in a farm. He came to my home and he saw my young daughter and kidnapped her. When I went back to my home, so I saw my daughter was not there. Then on one field I saw him that he was raping her, and when he saw me, he left her unconscious with bleeding and ran away. I wanted to catch him, but when I saw my daughter unconscious and full of bleeding, I was not able to even go any further, so I took her in my hands.
हाले भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और हाले भी अक्सर दर्द होता है क्योंकि ऑपरेशन जो She has a nightmare and she's still traumatized. And there are some desperation, but there are many other things which I cannot show on her body. She cannot pass urine in a normal way, so they made another hole from here to pass urine and the other thing. On every knock on our door, we think that someone came to kill us. Yes, I went to the police, but due to their pressure, police was not listening to us. Till now, they are threatening us. They are after our lives and they wanted to kill us. It's very tough to meet this little girl. It's one of the most hard things that I ever did in my life. This little girl will not be able ever to be married, to get married. She will never be able to live a normal life. Not only that, she is a threat to the rest of her life and she needs to be in hiding, she and her family, just because in case that the Muslim extremists know where they are, they can arrest them again, they can rape them again, and they can torture them again. And we need to do something about that. Neha Munir is 2 years and a half. Her father was a farmer, a Christian. He's a Christian farmer. The owner of the farm went to him, told him, I want you to convert to Islam. He told him no. The son of the owner of the farm, he's 18 years old. He went, he attacked the girl 2 years, he kidnapped her 2.5 years old, and he raped her. There's two important topics I want to speak with you. Neha is 2 years old who was raped by an 18 years old Muslim man. Yes, now she's 4. This was 2 years ago. And Neha family right now hiding underground in Pakistan. And I need to get her here to Canada anyway. I just need to do it. Thinking about Neha for the last 3 years. Thinking if we fail, thinking if we succeed, so all of his possibilities. Just a heavy burden. It's a very heavy burden. Let's go now to the Canadian Embassy, please. I worked 3 years for this small little passport. 3 years, hard work. And we got it. It's around 9:15 now in the evening in Islamabad. And as we're getting closer, the danger is also increasing. And countdown, just tomorrow morning the operation is supposed to take place. But everything will be okay. I'm home. So tomorrow in the morning, we are going to the airport, and we are taking you to Canada. And this will be the land of your freedom, and this will be the future for you and your family. Let's go. Let's go.
This is very exciting. Family's just about to come out from the immigration, so we're expecting them any second now. This will be really good. I hear the kids are all pumped up and excited and had a great time on the airplane, all that kind of stuff, so it should be very, very good. After 3 years, this era is over. And make it a lesson. Everyone will try to hurt the child, or anybody will try to hurt a minority in Pakistan. We will help these people and we will get them out. Make no mistake. And always remember that light always prevails over the darkness. Mission accomplished. It's over. It's over.